briefly coming on the screen and now vanished. Rashi lefty, the left armer, ready with the ball in his hands. Here we go. And there you go, action very early in the piece. Starts off with a wide, a loosener. जहां पहला गेंद लेग स्टंप से हादसा बाहर रहा, वाइड बॉल का इशारा, सरशेबाज कालिया, द लेजेंड ऑफ टेप बॉल क्रिकेट, लाहौर से ताल्लुक है। विकेटों के पीछे हुरम चकवाल, किंग ऑफ एशिया, सरमद हमीद एक बार फिर से सामना करेंगे राशि लेफ्टी का। Outside edge, he thinks it was an outside edge. He's asking for a referral, but the umpire has other ideas. He has given it a wide. Shahbaz Kalia says that it's an illegal delivery. You got to re-bowl that. He was just asking for a referral there, the bowler, Rashi lefty. He thought the batsman had a nick. जी बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, बिल्कुल किनारा लगने ही वाला था। ये हम रिप्ले पे चेक करेंगे। ये अच्छा गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। It was a big wide. I mean, it moved further away after pitching. Have a look at that. Yes, it was within the tram line when it passed the bat, but then moved further away with the angle. It was a tough call. जी हाँ बिल्कुल। राशि लेफ्टी थोड़े नाखुश ज़रूर हैं, क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया है किस वजह से। थोड़ा सा शायद रनअप पे भी मसला आ रहा है, क्योंकि ड्यू तो भी खैर इस ग्राउंड में नहीं है। ये दोबारा से हम रिप्ले में चेक करेंगे। There shouldn't be a problem with the run-ups because these bowlers are given the permission to use the spikes in their boots. Mostly you don't see in tight ball, people get the permission to bowl with the spikes in their boots. गालबन थर्ड अंपायर की जानब रजू किया गया है, इसलिए बार बार जो है वो रिप्ले में चेक किया जा रहा है। Yeah, it looks a legitimate delivery for me because have a look at that. Now, just there, when it passes the bat, the line seems to be within the tram line, and with the angle, it moved further away. Still has to be a legitimate delivery. जी हाँ बिल्कुल। और अंपायर अपने फैसले पे अटल रहे हैं। सरशेबाज कालिया, Tough being a bowler in tape ball, I can tell you. Margin for errors are very, very small. राशि एक बार फिर से, this time played away down the ground, beautifully executed for a boundary, or is it? I think it's been fielded. This is brilliant stuff. Absolutely brilliant effort in the field. I thought that was forewritten all over it, the way it was struck. जी हाँ बिल्कुल। टेप बॉल क्रिकेट में इस तरह की एफर्ट्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर 10 ऑफ द 10 जाएंगे फील्डर को, जिस तरह से उन्होंने एफर्ट की है और यकीनी बाउंड्री जो है वो सेव की है। अच्छा गेम था, उसे बिल्कुल सीधा खेले और फील्डर ने बिल्कुल वहाँ पर डाइव लगाई, यकीनी चौका जो है वो सेव करने में कामयाब हुए हैं। Excellent fielding. Brilliant stuff. Well done, son. He has really stopped a certain boundary there. सरमद हमीद की अगर बात की जाए तो इससे पहले मुकाबले में महज 3 बड़े शॉट्स खेलने में कामयाब हुए थे और आउट हुए उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर हमजा पठान, स्टोन मैन ने जिस तरह से परफॉर्म किया वो काबिल दीद था। ये बड़ा खूबसूरत मंजर है ड्रोन व्यू का। राशि लेफ्टी, Full toss, gets the treatment, 6.
This is Sarmad Hamid for you. Typical of the man. Brilliantly executed 6. जी हाँ, बिल्कुल ये फुल टॉस गेंद को हवाओं के रास्ते भेजा 6 रन के लिए। सरमद हमीद हिटमैन के नाम से मशहूर हैं। लो फुल टॉस गेंद और बिल्कुल खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर्ड बाय सरमद हमीद। It went a long, long way. He can hit the ball a mile. Such a big striker of the ball, Sarmad Hamid. Technically very sound. Off the back foot, pulled away nicely. And will split the field or won't. This is good effort by Adil Suhava. Trying bit of football skills there. Excellent fielding by Adil Suhava. और पहले मुकाबले में जिक्र हुआ था फील्डिंग का, तो शायद हमारी बातें जो हैं वो फील्डर्स ने सुन रही हैं। एक ही ओवर में 2 अच्छी एफर्ट्स, वो भी टेबल क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती हैं। And that too, when you talk about the ground fielding, you know, the catching generally has been an issue for these players, the tape ball players, but the ground fielding, it becomes worse. Not an easy job to stop the ball from going across the fence when it struck out of the middle of the bat. But that really was a very good effort. 2 efforts in this over to stop the force. This is brilliant stuff by the boys of Abbottabad. जी हाँ, बिल्कुल इन एफर्ट से बड़ा हौसला मिलेगा एबटाबाद की टीम को। राशि लेफ्टी, Whippage of the toes. This time it's in the gap and into the boundary for 4. Well done, Hamid. Good finish. जी हाँ, इस बार गैप ढूंढने में कामयाब हुए, क्योंकि इससे पहले वो फील्डर्स के साथ जो है वो खेल रहे थे, लेकिन इस बार पैरों पर गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग के एरिया में जो है वो मोड़ा 4 रन के लिए सरमद हमीद। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 ऐसे बैटर्स हैं जो लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, कवर डीप पॉइंट का एरिया बड़ी उमंग के साथ खेलते हैं। इससे पहले टेबल क्रिकेट में बहुत कम देखा जाता है कि कोई प्लेयर जो है वो इस एरिया को चूज करता है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं जब उनको थोड़ी हल्की गेंद मिलती है तो वो क्रॉस द लाइन मारने जाते हैं। तो ये वो 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में इस एरिया को बहुत उम्दा खेलते हैं, सरमद हमीद और खुर्रम चकवाल। Full toss, miscued in the air. It's a chance. No, eludes the fielder. Ihtisham Satti was the fieldsman, couldn't quite get to the ball, but that was an opportunity. And now the umpire has sent the decision upstairs. Maybe that is for the high full toss. जी हाँ, बिल्कुल थर्ड अंपायर का रुजू किया है फील्ड अंपायर ने। क्या ये नो बॉल है? रिप्ले में जरूर चेक करेंगे। अंपायर वहां पर जरूर चेक कर रहे हैं। Now 2 points I noted there. When the ball met the batsman, he was slightly bent. He wasn't standing upright, and the other thing is that he was a little outside his crease. So the ball had to cover a bit of territory to get to the popping crease. So that's why it's been given as a legal delivery. Benefit of the doubt goes bowler's way. जी हाँ, बिल्कुल राशि लेफ्टी अभी तक अच्छी बॉलिंग करते हुए, और काफी टाइम लिया जा रहा है ड्यूरिंग बॉलिंग। राशि लेफ्टी और एबटाबाद की टीम, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। Driven handsomely straight to the fielder. Little bit of fumble, no run taken. So a dot ball, because this is the only power play over. 1 over will be the power play, but the rest of the overs they can have more protection on the boundary, the fielders. जी हाँ, बिल्कुल ये भी एक अच्छा फैसला है, क्योंकि प्लेयर्स को ये चेक किया जाता है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का दिया गया, उस
ओवर में सिर्फ 17 रन बनाने में कामयाब हुए। सिर्फ एक छक्का और एक चौका उस ओवर में देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा उस ओवर में देखने को। 6 ओवर्स का मुकाबला है। क्या लगता है कितने रन्स TNS की टीम जो है वो बनाने में कामयाब होगी? Well, they'll be eyeing somewhere about 100 plus runs in 6 overs. If they get about 120, 125, they'll be quite happy with that, in my opinion. But to do that, they will have to continue batting well in the remaining 5 overs. But they have the resources. They played brilliantly in the first match, in the 8-over match. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन रात के स्पैर रन चेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है मुजम्मल का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि जो रात होगी तो गेंद जो है वो थोड़ा हार्ड होगा। उस वजह से शायद अगला गेंद जो है वो थोड़ा रोल हो जाए जब बल्ले पे आए, और बल्ले पे शायद गेंद ना आए। ये भी फ़र्क हो सकता है मुजम्मल कामोकी का। मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला है। At times you test yourself as well, so maybe they're testing themselves. Aruj DAP, ammonium phosphate chemical analysis. One of our sponsors, Aruj DAP. Low full toss, crashed away straight into the hands. That ball was travelling. It's good effort by the fielder to stop the ball, because that one went very quickly. Adil Suhava is into the attack. जी हाँ, अच्छी बॉलिंग आज की शाम अगर बात की जाए आदिल सुहावा की। फुल टॉस गेंद थी और फील्डर वहाँ पर ज़रूर फंबल हुए, लेकिन अच्छी रिकवरी। सिर्फ एक ही बासानी बनाने में कामयाब हुए सरमद हमीद। ये अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि इस मुकाबले में मुझे लग रहा है कि 80-90 रन्स बनेंगे और वो आखिरी गेंद तक मुकाबला जो है वो जाएगा। You just can't really predict what is going to happen in cricket, you know. Funny things do happen in cricket. So it becomes very weird when you're predicting something. Look at that. That looked as if it was in the slot, but he didn't middle that. He will get only a single, and it's Kamuki. यही बात मैंने आपसे पहले की है कि जब रात ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा होगा, अगला गेंद भी मे बी वो रोल हो जाए। और ये भी गेंद ऑलमोस्ट स्लॉट में मिल गया था, लेकिन वही बात कि वो डाउन द ग्राउंड गया। तो 90-95 इनफ मे बी this time total? I don't think so. Sorry to disagree with you, Kama. Because in my opinion, 120 still should be on the cards. जी हाँ, चले एक तरफ मुकाबला एबटाबाद और तोंसा का है, दूसरी तरफ मुकाबला यहाँ पर कॉम बॉक्स में भी चल रहा है। You're dragging a contest. I don't think so. I've just given my opinion. लेकिन अभी तक जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ऊपर जा रही है। You're just trying to prove yourself as a prediction master, right? Slot, in the slot, and result we all know. If you ball in the slot to Hamid, he's a big striker, and that really was a beauty. जी हाँ, ये स्लॉट में गेंद था, उसको लॉन्ग ऑन के पार पहुंचाया आदिल सुहावा का। ये तेज गेंद जो सीधा खेले और गेंद बहुत दूर पहुंचा। Suhava again. Shorter one this time down the leg side. Couldn't get the connection. Will be given as a wide. So 2 wides added to the total. Right, 19 runs at the moment. So in my opinion, they haven't lost a wicket so far. So they won't be happy with the proceedings, the boys of Tosa.
because they have their best batsmen at the crease at the moment, and they're not just finding their way to break free. They need to expand. DHA Sports Complex, such a beautiful view this. What a venue this in Multan. Oh, that was a tailing delivery and whippage at the toes. Beauty, beauty by Kamuki into the boundary after one bounce. जी हाँ, ये अच्छा गेंद और उससे भी शानदार शॉट और गोली की तरफ ये शॉट खेला था. वन बाउंस इनटू द फेंस भाई मुज़म्मल कामोकी. रन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जब से यहाँ पर मुकाबला शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है. क्रिकेट है, ये क्रिकेट की तरह रंग बदलती है. That's the dugout for the boys of Tonsa. Foltaz couldn't get the connection to his avail. Will only take a single and keep the strike for the next over. 2 bowled, 32 for none. ये अच्छी चीज़ है क्योंकि विकेट अभी तक कोई लूज नहीं किया. मुज़म्मल कामोकी जो 6 रन्स पर खेल रहे हैं, 22 रन्स पर सरमद हमीद खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राशि लेफ्टी को दोबारा से बुलाया जाएगा बॉलिंग के लिए. हालांकि अशरफ मलिंगा बड़ी अच्छी ऑप्शन है उनके पास, और जहां तक मेरा मानना है अशरफ मलिंगा को जो ठीक ठाक प्रोफेशनल क्रिकेट है वो इसी ग्राउंड से शुरू हुई थी. जब लास्ट टाइम उन्होंने इस ग्राउंड में टूर्नामेंट खेला और तौसा की नुमाइंदगी कर रहे थे. रबाडा ने अब ज्वाइन कर लिया है टीम को, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं खुरम रबाडा. उसके साथ साथ हमजा पठान है, नवीद दारा है, जमान यूसुफ है. Kalimullah was also there. He's a good slingy bowler for Tonsa. Rabada is also very impressive with the ball. He can swing the ball. Khurram Rabada. People just get confused with the name Rabada, Khurram Rabada, if it is Khurram Rabada or Kagisa Rabada from South Africa. And both of them are bowlers. Rashi lefty to continue. In the slot, hit high, hit hard, hit all the way. That's a maxi. जहाँ पहली गेंद और पहली गेंद पर बड़ा शानदार इस्तकबाल किया राशि लेफ्टी को. पहली गेंद पर छक्का दे मारा. मुज़म्मल कामोकी के स्लॉट में गेंद था. 38 रन पर जा पहुंचा है. रन्स का मजमुआ. वाओ, that had plenty of airtime on it. It was a Kamuki airliner. Oh, Kamuki, you little beauty! Whippage of the toes, hardly seemed to have lifted at the ground, flat into the crowd, another maxi. This is belligerent batting by Kamuki. excellent batting by Muzammil Kamuki. Bang! Wow! Just wow shot. Absolutely. Slightly offline. Nothing wrong with the delivery. It was full. It wasn't entirely in the slot. But the bat came like a shovel and lifted the ball all the way for a flat 6. This time he goes down the ground, beautifully struck, but straight to mid-off. Fielder does well to stop it. Will take a single, Kamuki. जी हाँ बिल्कुल. जो बैटिंग लाइन इससे पहले स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, लग रहा है कि एफएस की आवाज जो है वहां तक जा पहुंची है. Look, there are still quite a few Super Bowls to come, so anything can happen.
They can even get beyond 120. Who knows? 130, 140s even on the cards. The kind of batting we are witnessing. I agree with you. There you go. This time, punch down the ground, straight to mid-off for another single. This is good comeback after being struck for a couple of sixes, conceding 2 runs. That is acceptable. In tape ball, you know, if you're not leaking boundaries, it's good as a bowler. जी हाँ बिल्कुल ये अच्छा कमबैक था पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के खाने के बाद लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है आपके पास एक्सपीरियंस है आप एक्सपीरियंस से माला माल हैं लेकिन मैं अभी भी स्टिल उधर ही खड़ा हूँ 1995 Well, Lake, you love cricket and I love your passion. Kamuki at the moment is looking very dangerous. Outside edge! Could have been an acrobatic stuff had he held that catch. Would have been a blinder. जी हाँ बिल्कुल अगर ये कैच होता तो कैच ऑफ द नाइट विकेटों के पीछे खुरम चकवाल एफर्ट जरूर की रिप्ले में जरूर चेक करेंगे खुरम चकवाल जो विकेटों के पीछे खड़े हैं have a look at that oh my god I think should have taken that because he got both hands to that and it really burst through the hands. Should have taken that. जी हाँ ये हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे शायद ये गेंद लगा है अगर दोनों हाथों में आता तो यकीनन ये कैच होता बहरहाल But in my opinion, the timing of his dive was a little late. That's why he couldn't grab that. Once again, इस बार किनारा लगा गेंद गया थर्ड मैन के एरिया में फील्डर बासत लेफ्टी वहां पर मौजूद थे कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो है वो पिछले 2 ओवर्स में उस तरह से हुई नहीं है जिस तरह से पहले ओवर में हुई लेकिन 3 ओवर के बाद 48 बन चुके हैं तो अगर आप देखें प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 96 ही आ रहा है इससे पहले जो हमारे स्कोरर हैं उनकी जानब से ये इशारा आया But they didn't add Super Bowls to that, mind you. आउट भी तो हो सकता है ना उस सुपर बोल पे वो डॉट्स भी हो सकती हैं Time will tell. Still pending. Well, in your younger days, did you used to play table? What that fellow's doing? A serious bit of, chatting on the mobile phone there. Look at that. Very serious. Come on, enjoy table. You're in Multan. Why are you so serious? Hamza Dar from Gujranwala. ये दौरे हाजिर के बड़े बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इन्होंने बड़े थोड़े नाम टाइम पे जो है वो बड़ा नाम कमाया है लेकिन प्रोजेक्टिंग स्कोर देखें आप 96 लेकिन आपका ये मानना है कि सुपर बोल का आना बाकी है Not only one, there are 4 of them. There you go. The next one is a big one. It's Chota Wiki taking on Tim. I couldn't reckon Tim by that photo. Looked a different Tim in the photo. ये सारा कमाल जो है वो ग्राफिक्स का है No, this is a very good production. We have to admire the production, especially Shiraz Bhai came all the way from UAE and joined the team. He's doing a fantastic job. Waleed, always active. अशरफ मलिंगा को बुलाया गया बॉलिंग के लिए ये पहला गेंद फुल टॉस गेंद था ये मैदान के खाली एरिया की जानब रवा दवा है और यकीनन 2 आसानी बनाने में कामयाब होंगे 50 रन मुकम्मल किए टीम TNS ने इस अहम मुकाबले में Tonsa. 50 comes up for Tonsa. And the good thing is that both of their openers are still at the crease. बस कहीं ना कहीं ये ओवर फैसला करने वाला है कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो सही होती है या फिर मेरी अशरफ मलिंगा इस बार बल्ला चला
और वहां चला जहां पर बहुत कम बल्लेबाज चलाते हैं। ये डीप एक्स्ट्रा कवर का एरिया जिसको अबूर किया सरमद हमीद फ्रॉम जेलम, बिल्कुल अपने रंग में बल्लेबाजी करते हुए 32 रन पर जा पहुंचे हैं। 56 रन बन चुके हैं। सरमद हमीद जिनका बल्ला आप ज्यादा देर खामोश नहीं रख सकते। Yeah, one of the rare batters in tape ball who likes to go over covers. Good comeback. Tailing Yorker. This is nicely bowled. Sharaf Malinga, the youngster, coming back with a beauty and showing a bit of anger as well, and then a wry smile. They have good camaraderies between each other, these players. ये शायकीन क्रिकेट हैं जो इस वक्त रात के इस पर अपने अपने मनपसंद प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप को एंजॉय करने के लिए पहुंचे हैं। स्टोनमैन एक बार फिर से Full toss, don't bowl there. That's gone many a miles way back and lost in those trees. It's a maximum. अच्छी बल्लेबाजी मुजम्मल की जानब से। लो फुल टॉस थी। घुटना टेक तमाशा देख, और वही किया मुजम्मल ने। बिल्कुल पावर पे काफी ज्यादा इजहार करते हैं ये मुजम्मल कामों की। बड़े स्ट्रॉन्ग इनके मसल्स हैं। ये सुपर बॉल जिसका तज़किरा पहले ओवर के बाद होना शुरू हुआ। क्या सुपर बॉल पर बड़ा शॉट आएगा? एक बात है, अभी तक जितने भी सुपर बॉल्स हुए उसमें आउट कोई नहीं हुआ। Outside edge, nearly a wicket there. That's a best delivery to be bowled as a super ball. Outside the off stump, Yorker. जी हाँ, ये मुश्किल गेम था किसी भी बैटर के लिए। इस गेंद पर आप सिर्फ डाउन द ग्राउंड ही खेल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दाद देना पड़ेगी अशरफ मलिंगा को। सरमद हमीद और मुजम्मल कामों की दोनों खतरनाक तरीन बल्लेबाज हैं। टूर्नामेंट में 4 50 जो हैं वो लग चुकी हैं और 100। जिस टूर्नामेंट की पहली शाम को ही 100 बनेगी, उस टूर्नामेंट का आगे क्या हालात होंगे, कितने रन्स बनेंगे, कितने छक्के लगेंगे। That is in the slot, and thank you very much, says Hamid. Sends him over Langon for the maximum. It's a very good finish to the over. Full ball, it's 71 for none. जी हाँ, ये अच्छा शॉट सरमद हमीद की जानब से। आगे फेंका गया गेंद और सीधा बल्ला, माशाल्लाह। Yeah, high front elbow, beautifully executed and got the maximum result. He's a class player, and that really was a top shot. जी हाँ, टेक्निकली ये बड़े साउंड है। हमेशा गेंद और बल्ले की मुलाकात अच्छी करवाते हैं। और यहाँ पर खुरम चकवाल जाकर जानी को कुछ टिप्स दे रहे हैं। ये ओवर में बड़ा इम्तिहान है क्योंकि बैकअप एंड, चेंज ऑफ पेस, स्लो डाउन, तेज, मतलब इस ओवर में सब कुछ देखने को मिलेगा। Yeah, he knows how to bowl the variations, the bowler Zakir. But on the other hand, both of the batters, they are also aware of the fact what he will be trying to achieve. So it's going to be a good battle, good bit of tussle in this over between the youngster Zakir and the experienced two fellas with their bats in their hands. मुझे लगता है एफएस के मुजम्मल कामों की जो है वो आड़े हाथों लेंगे जाकिर जानी को। Inside edge, chopped on, and a wicket. Good start for Zakir Jani in the important over. Takes the important wicket of Muzammil Kamoki. Big man walking back to the pavilion after wonderful knock by Stoneman, silent killer. ये किनारा लगा है और
ये किनारे की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि पावर ज्यादा जनरेट की थी और ज्यादा क्रॉस द लाइन खेलने चले गए मुजम्मल कामों की, लेकिन अपना काम करके जा रहे हैं। हमजा पठान जिन्होंने पिछले मुकाबले में 5 गेंदों पर 5 लगातार फलक शगाफ छक्के लगाए और अपनी टीम की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमजा पठान ये इस मुकाबले में भी देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। हमजा पठान नए आने वाले बल्लेबाज हैं। सरमद हमीद को ज्वाइन करेंगे। हमजा पठान Another powerful lad, another powerful striker of the ball, Hamza Patan. He has shown his power in the last match as well. He can hit the ball big. But it's been a very good start by the youngster Zakir Jani with the ball, taking the big wicket of Muzammal Kamuki of the very first ball of his over. जाकिर जानी एक बार फिर से सामने हमजा पठान, इस बार बड़ा शॉट खेला जा रहे थे और फील्डर मौजूद पीछे और फंबल हुए वहां पर। 4 रन मिलेंगे, मुश्किलात में इजाफा, रन्स की रफ्तार बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। राशि लेफ्टी नाखुश अपने आप से। इससे पहले इसी टीम की फील्डिंग की बड़ी बात हो रही थी। एक ही ओवर में 2 अनस्टॉपेबल बाउंड्री जो है वो रोकी, लेकिन यहां पर एक सीधा गेंद जो है वो छोड़ा गया है राशि लेफ्टी की जानब से। Yeah, he was foxed by the bad bounce there. Should have been able to stop that, but really allows the ball to go through his hands into the boundary for 4. So it's going to be curtains now for the bowling side if they don't field well. Abbottabad boys, they need to field well. Inside edge again, this time just gets past Khurram Chakwal behind the stumps, and the batsman Hamza will take a single. A lot of inside edges we have seen in this over. जी हाँ, यही एडवाइस दी जा रही है कि सुपर बॉल को यूटिलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि सरमद हमीद के गेंद बल्ले पे सही तरह से आ रही है। ये मुजम्मल कामों की जो है वो इससे पहले आउट हुए थे अंदरूनी किनारा, और किस किया वहां पर बेल्स को। जाकिर जानी, ये अच्छा गेंद, ये पैरों पर पड़ा, 30 गज दायरे के अंदर रहेगा। खुर्रम चकवाल वहां पर पहुंचे इस गेंद को फील्ड करने के लिए। अभी तक अच्छी बॉलिंग इस ओवर में, ये लेग बाय की सूरत में एक आया। Yeah, let me tell you something here, and our viewers, that if the runs are not scored off the bat on a Super Bowl, then it will be the runs you get. But if you score them off the bat, then it will be multiplied by 2. This is what the Super Bowl is. इस बार फंबल हुए जाकिर जानी। जी हाँ, जो बल्ले से रन्स बनेंगे वही जो डबल रन्स हैं वो काउंट होंगे। एक्स्ट्रा की सूरत में लेग बाई, बाई, वाइड, नो बॉल, ये रन जो हैं वो बिल्कुल अकाउंट नहीं होंगे डबल रन्स में। तो ये भी कड़ा इम्तिहान है बॉलर्स के लिए, क्योंकि सारा ओवर अगर आप अच्छा करते हैं सुपर बॉल पर आकर आपको 3-4 बार सोचना पड़ता है किस एरिया में बॉल करें। हमजा पठान इस बार भी अंदरूनी किनारा, और एक और गेंद डॉट करने में कामयाब हुए। खुर्रम चकवाल विकेटों के पीछे हैं, जान में जान आई है, क्योंकि ये ओवर अभी तक मैच 5 रन दे के गया है। So last ball is coming up, and it's going to be a Super Bowl. Last ball will be a Super Bowl. Take a look at that signal by the umpire Shehbaz Kalia. जी हाँ, ये वो आखिरी गेंद है जिसका
तस्करा रहता है हर एक मुकाबले में। जाकिर जानी ये सुपर बॉल, और ये सुपर बॉल पर ये सुपर डिलीवरी की वहां पर जाकिर जानी ने। यकीनन ये सिंगल ही आएगा क्योंकि गेंद और बल्ले की मुलाकात बिल्कुल नहीं हो पाई। खुरम शक्वाल बहुत खुश हैं जाकिर जानी से। सो एंड ऑफ द 5, 78 for 1 by Tonsap. It's not only Khurram Shakwal, but I get the feeling my co-commentator Kamar, he also seems to be very happy with the proceedings so far, because maybe now there is a chance that your prediction is going to go right. हाँ, अच्छी बॉलिंग। मैच 5 रन दिए उस ओवर में, और ये आखिरी ओवर इस टारगेट का तयन करेगा कि टारगेट कहां तक पहुंचेगा। आदिल सुहावा को जो है वो दोबारा से बुलाया गया है, जो आज की शाम के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं स्विंग के लिहाज से। इससे पहले भी कॉम्बॉक्स में यही बात हो रही थी कि अच्छी खासी गेंद स्विंग कर रहे हैं ये हवा में। Yeah, he gets the ball to swing in the air, and at times he gets some pushes off the surface as well. Adil Suhava. Nicely bowled, whipped away straight to mid-on for a single. Good start to the over by Adil Suhava. जी हाँ, अच्छी बॉलिंग, अच्छा स्टार्ट। अभी तक सिर्फ 8 रन की पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप हुई है। यहाँ पर आदिल सुहावा बॉलिंग करते हुए एक बार फिर से आदिल अपने बॉलिंग के निशान से दौड़ना शुरू करेंगे। Full toss, gets down on one knee and sends him over mid-off. Maximum, this is good strike by Sarmad Hamid. Needs to finish well here just before the close of this innings. Absolutely getting it right here. Such a powerful striker of the ball, Sarmad Hamid. जी हाँ, ये अच्छा गेंद लो फुल टॉस थी जिस पे पिल पड़े, लॉन्ग ऑफ का एरिया जिसको अबूर किया। आदिल सुहावा एक बार फिर से in the slot again, and thank you very much. If you bowl me there, I'm ready to send you in the crowd. That's another maximum. Hamid absolutely making the most of it, and 50 comes up for Sarmad Hamid. Well played. 2 consecutive sixes by Sarmad Hamid from Jhelum. Super batting. Have a look at that. Bang. Wow. Out of the park. Sarmad Hamid, the unstoppable batting at DHA Sports Complex from Multan. एक बार फिर से आदिल सुहावा। Oh, that's a good delivery. Moved away. Umpire says you have to re-bowl that. Now, this is incredible. That looked very tight, and there you go. Khurram Shakwal is asking for a referral. जी हाँ, यहाँ पर थर्ड अंपायर को रजू किया गया है इस फैसले के लिए। ये बड़ी क्लोज कॉल, क्योंकि ये बैकअप हैंड थी, बल्ला पहले चला गया। एजाज अहमद जज्जा जिनका ये सिग्नल था कि ये वाइड बॉल है। That's a tough call for the TV umpire as well. This is going to be a tough one, really. A tester. Very tight. जी हाँ, कड़ा इम्तिहान है थर्ड अंपायर का। वाइड बॉल, फाइनली अंपायर कॉल एजाज अहमद जज्जा। Very serious as Ijaz Ahmed Jajja. You know, when he was signaling the wide, he was looking so serious. Not like us. We're enjoying. We are here in the com box. थैंक यू वेरी मच। आदिल सुहावा यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं और
ये आखिरी ओवर, ये अच्छा शॉट था, फील्डर मौजूद पीछे, फंबल हुए लेकिन अच्छी रिकवरी, एक ही आसानी बनाने में कामयाब होंगे। रन्स की तादाद जरूर आपसे शेयर की जाएगी। Yeah, that was a very good pull shot, but couldn't quite get the gap there. Because now that is the beautiful trophy. This is what they're playing for. This is beautiful, gorgeous trophy. Foltas couldn't quite get under the ball. Straight at the fielder. Does well to stop it. This is good bit of comeback by Adil Suhava in this over after conceding a boundary. Couple of boundaries. Yeah, he's been very impressive with the ball so far, has been Adil Suhava, and he has the ability to really, fox the batters with his variations, and this is what we have witnessed so far. जी हाँ बिल्कुल, अच्छी बॉलिंग, 94 for 1, 5.5. Last ball, Adil Suhava. Look at that! Excellent bowling. Adil Suhava. Very good finish to the over. 94 then. 95 will be the target, my word. What a prediction master I have next to me. Come. और रिसेंटली जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्होंने अपने आप को खूब मनवाया है। पाकिस्तान टेप बॉल में एक नई एंट्री हुई है, इनाम मियां वाली सामने है, हसन पेंडा, पहला बॉल, सेकंड इनिंग्स, फुल टॉस बॉल, और ये पहली ही बॉल पर आगाज कर दिया है, इस्तकबाल किया है 6 रन्स के साथ हसन पेंडा ने इनाम मियां वाली का। जी हाँ, लाइन और लेंथ पर कंट्रोल नहीं था और हसन पेंडा का बल्ले पर कंट्रोल जरूर था और खूबसूरत शॉट देखने को मिला। तेज बॉल था, पूरी तरह तैयार थे और ये आप देखें उनके चेहरे पर शरारत भी यहाँ है। हसन पेंडा साथ में अपील भी कर रहे हैं कि यार ये नो बॉल नहीं है, मेरे ख्याल से रेफर किया गया है नो बॉल के लिए यहाँ भी बल्लेबाजों की जानिब से। और पहले मैच में हमने देखा कि खुरम और हसन की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी और स्पेशली दोनों ने जो है वो खूब लाठी चार्ज किया। जब दोनों एंड से रन्स आते हैं तो यकीनी तौर पर टीम्स के लिए, ऑपोजिशन के लिए बचना जो है वो नामुमकिन होता है। ये चेक किया जा रहा है कि ये नो बॉल थी या नहीं। थर्ड अंपायर जो कि इस फैसले को यहाँ पर देंगे और इनाम जो कि अगर ये नो बॉल होती है तो ये बहुत रिलीफ मिल जाएगा टीम एबटाबाद को। जी हाँ, पहला ही बॉल छक्का तो आया ही है, साथ में नो बॉल के लिए रेफर किया गया थर्ड अंपायर को और फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप राव इमरान इस्लामाबाद पिंडी से ताल्लुक़ है, बड़े मैच्योर अंपायर हैं, अपने दौर के लेजेंडरी क्रिकेटर भी रहे हैं और मशहूर हैं, बड़े सख्त किस्म के अंपायर। जी हाँ, बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी बात से कि सीनियर प्लेयर रह चुके हैं और स्टेप बॉल में सीनियर अंपायर के तौर पर इनको जाना जाता है। इनाम मियां वाली पर फैसला अभी आना बाकी है। हसन पेंडा मुझे काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, क्या ये फेयर डिलीवरी थी या नहीं, ये नो बॉल कंसीडर की जाएगी, इसका फैसला अभी आना बाकी है। पूरी फोर्स के साथ बल्ला घुमाते हैं और पूरी फोर्स के साथ साथ जब मिडल होता है तो फिर बहुत लंबे छक्के बढ़ते हैं।
जी हाँ, यहाँ पर जी हाँ, फेयर बॉल का सिग्नल आ चुका है थर्ड अंपायर की जानिब से, और खुरम चकवाल और हसन पेंडा की ओपनिंग जोड़ी जो कि यहाँ पर मौजूद है। पहली बॉल पर 6 रन और रिक्वायर्ड रन रेट अब यहाँ पर 15.26 की है। जी हाँ, दूसरा बॉल करवाएंगे इनाम। हसन पेंडा सामने है, इस बार स्लोअर बॉल था, ऑन साइड की जानब खेला, फील्डर मौजूद होंगे यहाँ पे। जी हाँ, एक ही रन मिलेगा। विकेट यकीनी तौर पर अर्ली ऑन आपको हासिल करना होगी टीम तोंसा को, अगर इस टारगेट को अचीव करना है तो। इनाम पहली बॉल पर छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की है खुरम चकवाल, जिन्होंने इस पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में जब एंट्री की है तो 61 रन्स बनाए और नॉट आउट रहे। खुरम चकवाल कैप्टन ऑफ एबटाबाद सबील टाइगर्स, और इस बार बॉल हवा में है, फील्डर के हाथों में बिल्कुल नहीं है, ये मिस जज हुआ फील्डर, और ये बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ी विकेट गंवा दी, ये हासिल कर सकते थे। जी हाँ, बड़ी जबरदस्त एफर्ट तीनों फील्डर्स की जानिब से। लास्ट में डाइव भी की थी हमजा पठान ने, लेकिन एक बड़ा चांस बहरहाल मिस कर दिया। 8 रन आए 3 बॉल्स पर, फुल टॉस बॉल, और ये देखिए काफी देर हवा में रहा, और मिस जज कह सकते हैं। जी हाँ, पहली बॉल पर छक्का लगने के बाद अगली 2 बॉल्स पर सिर्फ 2 रन आए हैं। पहला ओवर जारी है, रन की तादाद है 8 और 95 रन का ताकुब है। और क्या अंदाज है, क्या ये दलेराना शॉट है, बेहतरीन बेमिसाल हसन पेंडा, यू ब्यूटी। शुएब, यहाँ पे हसन पेंडा की अगर बात करूं, छक्का तो लगाते ही हैं एनर्जी के साथ, लेकिन छक्का लगाने के बाद जो इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी बड़ी उसमें एनर्जी नजर आ रही होती है सेलिब्रेशन में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि छक्का लगाने के बाद वो पोज जो है वो अपना बैट को हवा में ही रखते हैं और इशारा करते हैं बॉलर को, ये मैसेज देते हैं कि आप एक्टिव रहें। एंड अगेन ह्यूज हैंडसम मैक्सिमम कमिंग फ्रॉम पेंडा। जी हाँ, एक और छक्के के साथ जबरदस्त इस्तेकबाल किया है इनाम का हसन पेंडा ने, और रन्स की तादाद 5 बॉल्स पर 20 आ चुकी है। इस बार तो बहुत ही खराब बॉल था ये, शॉर्ट पिच बॉल, ऊपर से आपने टाइम इतना दिया और ऊपर से हसन पेंडा सामने तैयार था। जी हाँ, एक बार फिर से तैयार हसन पेंडा, इनाम को आड़े हाथों लेते हुए। वाह, वंडरफुल कनेक्शन, एक और खूबसूरत छक्का हसन पेंडा के बल्ले से, कोई माफी नहीं है। और पहले छक्के के बाद लग रहा था इनाम ने अगले जो बॉल किए हैं वो बिल्कुल कह रहे थे आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, और ये शॉट जो है ये वायरल होने वाला है, ये पक्का शॉट वायरल होगा, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल को अगर आप इस तरह से शॉट खेलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है हसन पेंडा के पास, और आज ये कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पर टीम तोंसा के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। एक ओवर के इख्तिताम पर 26 रन बिना किसी नुकसान के। शुएब, अगर मैं यहाँ पे हसन पेंडा की प्रैक्टिस की बात करूँ, ट्रेनिंग की बात करूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी लाहौर से है और कई बार इनको देखा है, बल्कि जो प्लेयर इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं ये थकता नहीं है, 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करता रहेगा। और जो टीनेज लड़के हैं उनको ये कहते हैं कि मुझे 16 कदमों पे 18 कदमों पे फुल तेज थ्रो करें, और जो बंदा मुझे बॉल बॉडी पे मारेगा या बीट करवाएगा मैं उसको खाना खिलाऊंगा, यानी इस लेवल की ये ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, और उसी वजह से
कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत हाई होता है हसन पेंडा का। जी हाँ, जब आपने बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, बड़ा नाम पैदा करना है, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको नेट्स में जाकर 300 400 500 बॉल तक भी खेलना पड़ेंगी, तब भी जाकर आप 10 से 15 बॉल्स मिडल करने में कामयाब हो पाते हैं। और ये ओवर यकीनी तौर पर बहुत पेनफुल ओवर रहा टीम तौंसा के लिए। सेकेंड अटैक के लिए अब देखना है कि किसका इंतखाब किया है। खुरम रबाडा, जी हाँ, लाहौर से ताल्लुक है, शहर लाहौर से। सामने खुरम चकवाल, और बहुत ही बुरा आगाज यहाँ पर किया है, बहुत बड़ा जो है वो वाइड बॉल, काफी ज्यादा लेग साइड लेग स्टंप से बाहर थी ये बॉल। जी हाँ, 31 रन आ चुके हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कम होकर 12.80 तक आ चुका है। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी। खुरम चकवाल काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानिब हसन पेंडा ने जो औसत थी वो बेहतरीन तरीके से मेंटेन की हुई है। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल था। अच्छा कमबैक खुरम रबाडा की जानिब से। अच्छा कमबैक तो है, लेकिन जो पहला बॉल है वो यकीनी तौर पर बहुत ही खराब था। 5 रन आए, और खुरम रबाडा जो कि सीनियर बॉलर हैं, इनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, और कैप्टन को ज़रूरत है। जब कैप्टन को ज़रूरत हो तब आकर आप परफॉर्म करें, मुश्किल कंडीशन में आकर परफॉर्म करें, तब भी आप बड़ा नाम पैदा करते हैं। और ये बड़ा बॉलर है, आज फिर से इनके लिए एक इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है कि आज टीम को ज़रूरत है, कैप्टन को ज़रूरत है, तो वो परफॉर्म करके दें। ओह, क्या दिलकश, दिल को मुंह लेने वाला शॉट है। उम्दा, निराला, बहुत आला, बहुत आला, किंग ऑफ एशिया। ये जो है वो कलाइयों की जो है वो खूबसूरती दिखाई है, कलाइयों की पावर शो की है खुरम चकवाल ने। And again ball will goes out of the stadium. That is King of Asia. That is the power of Khurram Chakmal. No one can stop him. He is doing a fantastic job with his outstanding batting. जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 53 रन मजीद बाकी हैं और पूरी तरह रेडी थे इस बॉल के लिए खुरम रबाडा की खुरम चकवाल। और इस बार अच्छा बॉल, फुल लेंथ बॉल किया था, बॉल गया थर्ड मैन की जानिब, एक ही रन मिलेगा। 44 रन हो चुके हैं, 51 रन मजीद चाहिए। हसन पेंडा 5 बॉल्स पर 25 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। और जी हाँ, बिल्कुल, पहले ओवर में अच्छे खासे रन्स, और उसके बाद दूसरे ओवर में भी खुरम रबाडा जो कि 4 बॉल्स पर 18 रन जो है वो कंसीड कर चुके हैं। 5वां बॉल सामने है हसन पेंडा, बहुत ही बुरा बॉल किया है। अगेन वाइड बॉल कंसीडर किया जाएगा, और साथ बाय का 1 रन भी मिला, तो इट्स मीन के 20 रन तो आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे अयूब खुरम चकवाल की फॉर्म के बारे में? बहुत बहस व मुबाहिसा सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रहा है अरसाए 6 से 8 माह में कि खुरम चकवाल की फॉर्म नहीं है, खुरम चकवाल अब जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ये आज बता दिया दोबारा से। जी हाँ, इस बार बॉल हवा में है, 6 रन मिलेंगे। मेरी बात का जवाब खुरम चकवाल ने अपने बल्ले से दे दिया है। देखिए शोएब, खुरम चकवाल टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है, फॉर्म आना जाना ये प्लेयर के साथ रहता है, लेकिन जो क्लास है, जो स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, वो बहुत हेल्प करती है आपको, और किसी भी टाइम ये खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसा कि आज उनकी बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, स्लो बॉल, और स्लो बॉल को जो है वो स्टैंड्स में पहुंचाया, तमाशाई बने रहे फील्डर्स। इस बार दोबारा से बहुत जोर से खेला, लेकिन ये फंबल हुए फील्डर, 1 रन पर इत्तेफाक करेंगे। और यहाँ पर ओवर का इख्तिताम हुआ है, 2 ओवर्स के इख्तिताम पर
53 रन हैं और 25 रन बनाए 5 बॉलों पर, 7 बॉलों पर 21 रन। आप बात कर रहे थे खुरम चकवाल की टेक्निक पर और उनकी क्लास पर, तो फॉर्म बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि दुनियाए क्रिकेट के बड़े बड़े जो लेजेंड्स गुजरे हैं, जिन्होंने रन्स के अंबार लगाए हैं, सेंचुरीज की जो है एक लंबी फहरिस्त उनके रिकॉर्ड के साथ जुड़ी हुई है, वो भी जो है वो इस फेस से गुजरते हैं। तो ये फेस जो है वो यकीनी तौर पर बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यकीनी तौर पर खुरम चकवाल ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो सीखने का अमल जो है वो अयूब सारी ज़िंदगी जारी रहता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक, और सबसे बड़ी बात खुरम चकवाल ने अपने आप को फिट रखा हुआ है, अपनी फिटनेस पर मेहनत करते हैं, और ये यंगस्टर्स के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप अपनी फिटनेस, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें। तो जब आपकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग हो, फिटनेस आपकी बेहतरीन हो, तो ग्राउंड में परफॉर्म बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर एक और ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, पहले मैच में भी जो है वो 100+ रन्स की पार्टनरशिप, और दूसरे मैच में भी जो है वो बहुत ही अच्छा आगाज़ फराहम कर दिया। 50+ रन्स की पार्टनरशिप है। 12 बॉल्स पर 53 रन्स जब आप हासिल कर लेते हैं, और टारगेट आपके पास 95 का हो, तो वो टारगेट अब छोटा हो चुका है। और अब एक क्या वो जादुई ओवर कर पाएंगे इजहार, जिन्होंने ऑफ स्टंप पर की गई है बॉल, जिसको खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। यकीनी तौर पर कोई मौका नहीं होगा फील्डर के लिए। 4 रन्स का इजाफा होगा खुरम चकवाल के लिए, टीम एबटाबाद के लिए। जी हाँ, अभी तक वन साइडेड मुकाबला चलता हुआ। ये बॉल में मेरे ख्याल से आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल टॉस बॉल था, और इजहार अच्छे बॉलर हैं, यंगस्टर हैं, एक मुश्किल एक्शन है। वंस अगेन इस बार बेहतरीन कनेक्शन, एक और छक्का खुरम चकवाल के बल्ले से। 63 रन हो चुके हैं। बहुत ही बेमिसाल मैचलेस बैटिंग आप कह सकते हैं इस टाइम खुरम चकवाल। कोई जोड़ नहीं है खुरम चकवाल का। ये बॉडी लाइन पर की गई ये बॉल, जिसको खड़े खड़े खेल दिया है ऑन साइड एरिया में, और स्टैंड्स में ये बॉल जाके लैंड करी। इस बार फुल लेंथ बॉल, जिसको ऑन साइड की जानिब खेल दिया है ग्राउंड शॉट की मद में। 1 रन का इजाफा होगा। जी हाँ, 64 रन हो चुके हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, और 9 रन्स पर ओवर की एवरेज बाकी है। इसके बाद तैमूर मिर्जा वर्सेस छोटा विकी, ड्रीम 11 मुल्तान वर्सेस वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला के दरमियान मुकाबला होगा। इजहार एक बार फिर से, इस बार लीडिंग एज, कैच ड्रॉप कर दिया। ये राइज अप डिलीवरी थी, और डेक ऑफ द सरफेस पर पड़ने के बाद बाहर को निकला ये बॉल, जिसने तंग किया हसन पेंडा को। जी आप देख सकते हैं राइज अप डिलीवरी, और सही कहा आपने कि एज हुआ आउटसाइड एज, जिसको हमजा पठान कैरी करने में नाकाम रहे। और हसन पेंडा, इजहार एक बार फिर से तैयार है। फुल टॉस बॉल, जिसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट के लिए खेला है, सिर्फ 1 रन के लिए। जी हसन पेंडा विकेट पर मौजूद हो तो जो लोग ग्राउंड में आते हैं वो तो महसूस होते ही हैं। इनकी बल्लेबाजी के साथ साथ इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो सेलिब्रेशन स्टाइल है, और इनका अपोजिशन के साथ जो दिल लगी है उससे, वाह वंडरफुल कनेक्शन। खुरम चकवाल द किंग ऑफ एशिया, आज खुरम चकवाल की जवानी वाली बैटिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी बात से। और ये दिल को मुंह लेने वाले शॉट्स, क्या क्लासिकल हिट्स लगाए, क्या माउंटेनियस हिट्स लगाए, और बॉडी
का बैलेंस और ये जो शॉट्स हैं यकीनी तौर पर आज फैंस बहुत ज़्यादा खुश होंगे खुरम चकवाल के, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है। इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। 3 ओवर के इख्तिताम पर रन की तादाद है 71 रन। लास्ट ओवर में भी 18 रन। ये चौथा ओवर देखना है कि अब कौन बॉलर। जी हाँ, कलीम खान आ चुके हैं, लैया से ताल्लुक है, दराज कद है और लेट लाया गया है। इवन दो कि इन्होंने पहले मैच में बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था। हसन पेंडा तैयार है सामने, बहुत महंगा बॉल, वाइड बॉल से आगाज और साथ बाय का 1 रन मिलेगा। हसन पेंडा की जो है वो नटखट हरकतें यहाँ पर जारी हैं, जो कि इनकी वजह शोहरत भी है, सुर्खियों में रहते हैं हमेशा। ये जो है वो हंसता मुस्कुराता चेहरा टेप बॉल में आप देख सकते हैं। जी हाँ, 22 रन बाकी हैं 3 ओवर्स में। 18 बॉल्स पर खुरम चकवाल बिल्कुल सामने है। बॉलिंग पर कलीम मलिंगा, कोट सुल्तान लैया से ताल्लुक है। स्लोअर बॉल किया था और यहाँ पे फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। कलीम खान जो कि एक स्लिंगी एक्शन रखते हैं अपने पास, 12 बॉल्स पर 38 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। खुरम चकवाल जो कि 50 बना सकते हैं, यहाँ पर एक और 50 बना सकते हैं। इस इवेंट की दूसरी 50 होगी खुरम चकवाल की। काफी फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कलीम खान वर्सेस खुरम चकवाल। ये स्लो डाउन डिलीवरी और ये फुल टॉस जो कि बॉडी लाइन पर हिट होने के बाद, बॉडी पर हिट होने के बाद ऑन साइड एरिया की जानिब। हसन पेंडा ने 2 रन के लिए सिग्नल दिया, लेकिन खुरम चकवाल ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। दो बॉल करवा चुके, अच्छे बॉल करवाए हैं कलीम ने। और अब सामना करेंगे हसन पेंडा। और स्लोअर बॉल किया था, चकमा देने में कामयाब यहाँ पे कलीम मलिंगा। बहुत अच्छा बॉल, विकेट कीपर हमजा पठान इसको रोकने में कासिर रहे और उसी स्ना में जो है वो 1 रन बाय का हासिल किया है। अब सिर्फ 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 15 बॉल्स का खेल बाकी है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो इस टाइम 8 की है। कलीम खान चौथे बॉल के लिए तैयार है, सामने है खुरम चकवाल। फुल टॉस बॉल और उसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाए, सिर्फ 1 पर ही मोहतात होंगे। और ये ओवर, अयूब क्या ओवर कर दिया कलीम खान ने। जी हाँ, बड़ा जबरदस्त ओवर। 4 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन दिए हैं अगेंस्ट हसन पेंडा एंड खुरम चकवाल के दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज। अब 14 बॉल्स पर 19 रन बाकी हैं और 2 बॉल पर अगर यहाँ पे बाउंड्री सेव करते हैं तो मेरे ख्याल से अगले 2 ओवर्स तक मैच चला जाएगा। कलीम, हसन पेंडा सामने है, लेकिन इस बार बिल्कुल बेहतरीन जजमेंट हसन पेंडा की जानिब से। छक्का लगाने के बाद उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल वाजे है। और ये अयूब ऑफ साइड ऑफ स्टंप से अच्छा खासा बॉल को लपेटा है और इन्होंने
जो है वो 6 रन के लिए खेला है। ये देखें, ये धोबी पटका शॉट आप इसको कह सकते हैं। टिपिकल जो है इनका अंदाज है, जो कि सिर्फ इन्हीं के पास है। कभी ये जंप लगा के छक्का लगाते हैं, कभी ये ऑफ साइड ऑफ स्टंप से जो है वो खींच के, और इस बार ऑफ स्टंप पर की गई है बॉल, जिस पर नाकिस फील्डिंग का मुजाहरा किया वाइड लॉन्ग ऑन, सॉरी कवर्स पर मौजूद फील्डर ने। और ये 2 रन मुकम्मल की, तीसरा लेना चाहा लेकिन खुरम चकवाल ने यहाँ पर कहा है कि बाज आ जाओ पेंडा, बाज आ जाओ। जी हाँ, खूबसूरत प्लेयर, मेहनती प्लेयर हसन पेंडा। इससे पहले सेंचुरी स्कोर की थी और अब 10 बॉल्स पर 34 रन लगाए हैं। और सिर्फ ऑफ स्टंप बॉल था, इसको जल्दी कर गए खेलने में, हालांकि काफी बाहर बॉल था। और अब 9 रन बाकी हैं 12 बॉल्स पर, बल्कि 11 रन माजरत बाकी हैं। ये देखें, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही मुतहर्रिक नजर आते हैं। चाहे वो अगर विकेट कीपरिंग करें तब भी जो है इनका जो वॉल्यूम है काफ़ी हाई होता है, और बॉलर को भरपूर जो है वो बूस्ट करते हुए नज़र आते हैं। 4 ओवर्स मुकम्मल, 84 रन। अब 11 रन की दूरी है, जो कि ज़्यादा नहीं है, जीत के बहुत करीब आ चुकी है टीम एबटाबाद। खुरम चकवाल, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये 11 रन बनाकर 50 मुकम्मल कर ले। इजहार है आई थिंक बॉलर, और इस बार हवा में खेल दिया है, फील्डर के पास अपॉर्चुनिटी है, ये कैच ड्रॉप कर दिया है। नाकिस फील्डिंग यहां पर दिखाई दी टीम तौंसा के फील्डर्स की जानिब से। शॉर्ट पिच बॉल, जिसको पुल किया खुरम चकवाल ने, और उसको बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए। दोबारा से बॉलर तैयार, इस बार अपना एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, और खुरम रबाडा थे फील्डर जिन्होंने कोई गलती ना की। और इसी तरह खुरम चकवाल की इनिंग्स का इख्तिताम हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की और एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ अपनी टीम के लिए फ्रूटफुल रन्स बनाने के बाद पवेलियन की जानिब रवा दवा। और अपना रिवायती अंदाज अपनाना चाहा खुरम चकवाल ने, और क्या कैच कैप्ट किया, रनिंग करते हुए आए, नजर रखी, डाइव की, और अब 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। लाहौर, शहर लाहौर से ताल्लुक है वकास कबूतरपुरा। बैटिंग के साथ साथ जब टीम को जरूरत होती है तो बॉलिंग भी करना ये जानते हैं। उसके बाद एक अहम मैच है, एक बहुत बड़ा मैच है, मुल्तान वर्सेस गुजरावाला। मुल्तान ड्रीम 11 और गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स की टीम मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीम्स जो है वो अपना पहला मैच जीतने में नाकाम रही हैं, तो इस मैच को जीतना इन दोनों टीम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस मैच को जो टीम लूज करेगी तो उसका आगे के जाने का जो सफर है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बार बहुत ही जोश और जज्बे से खेला गया ये शॉट, वकास कबूतरपुरा ने आते ही जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है इस दिलकश शॉट के साथ 6 रन के लिए। ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर की गई है बॉल, जिसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया है 6 रन के लिए। अब सिर्फ 3 रन की दूरी है यहां पर टीम और ये बॉडी लाइन पर की गई है बॉल, राइजिंग डिलीवरी जो कि बॉडी पर जा लगी और कोई रन नहीं आया। अब यहां पर 8 बॉल्स बाकी है और महज
3 रन बाकी है जीत के लिए। पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप 1.5 करोड़ इनामी रकम के साथ दुनिया टेप बॉल का सबसे ज्यादा प्राइज मनी वाला इवेंट सरजमीन औलिया मुल्तान DHA मुल्तान की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये इवेंट की आज पहली शाम जारी है। और इजहार ने इस बार दोबारा से अपने इरादों का इजहार किया है, लेकिन सात बॉल्स बाकी हैं और सिर्फ 3 रन बाकी हैं। खुरम चकवाल बड़े खुशगवार मूड में अपने डगआउट में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से खुरम आउट हुए, एक्स्ट्रा कवर की जानिब हवाई हमला करने की कोशिश, प्रॉपर मिडल नहीं कर पाए और अगेन राइजिंग डिलीवरी। अपील कर रहे हैं वकास कबूतरपुरा कि ये वाइड बॉल है, अंपायर का सिग्नल कि इट्स अ लीगल बॉल। और इसी तरह ओवर का आई थिंक यहाँ पर इख्तिताम हो चुका है एक अच्छे नोट पर इजहार की जानिब से। और अब 5 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन बाकी हैं। इसके बाद एक अहम मैच होने जा रहा है इस पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप का। ये आप देख सकते हैं आखिरी बॉल पर चेक किया जा रहा है, ये लेग कटर किया है इन्होंने और इतनी परफेक्शन के साथ ऐसा बॉल बहुत ही ये रेयर टैलेंट है। इजहार अभी यंग एज है, अभी एज कम है, यकीनी तौर पर जैसे जैसे ये क्रिकेट खेलते रहेंगे वैसे वैसे जो ये है ग्रूम करते जाएंगे। आखिरी ओवर का इंतखाब अब देखना है कि मुजम्मिल कामों की किस बॉलर का करेंगे। स्किपर ऑफ एबटाबाद सबील टाइगर्स खुरम चकवाल, जिन्होंने पहले मैच में 61 रन और दूसरे मैच में जो है वो 6 बॉल्स 3 रन। कलीम खान फ्रॉम लैया आए हैं बॉलिंग करने के लिए और सामने है डेंजरस बैटर हसन कदीर, हसन पेंडा। फुल लेंथ बॉल जिसको ग्राउंड शॉट के बाद में बहुत ही सेंसेबल तरीके से खेल दिया है, स्ट्राइक रोटेट किया है और अब सिर्फ 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप चेयरमैन मिस्टर अली खान तरीन और यहां पर प्राउड स्पॉन्सर हैं इस चैंपियनशिप के उरूज DAP, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है किसानों के लिए। उरूज DAP कलीम जिन्होंने सिंगल के साथ आगाज किया अपने ओवर का। वकास कबूतरपुरा जो कि 4 बॉल्स पर जो है वो सिर्फ 6 रन दे चुके हैं और फील्डिंग में अब मुजम्मिल कामों की ने थोड़ी तब्दीलियां की हैं। और इसी तरह इस मैच को जीत चुकी है एबटाबाद सबील टाइगर्स की टीम।